नाजरीन आदाब, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा और कई इलाकों में आधी रात को अजीबो गरीब बू का इखराज, अवाम में खौफ व हिरास। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा, कारवां और कई इलाकों में चहरशंबे की आधी रात को अजीबो गरीब बू हवा में फैल गई। मुकामी अफराद इस बू को जहरीली गैस तस्वुर करते हुए अपने मकानात से बाहर निकल गए और रात सड़क पर गुजारी। बताया गया है कि रात 2 बजे के बाद से हवा में ये अजीबो गरीब बू शुरू हुई, जिसको लोग बर्दाश्त न करते हुए मास्क पहन लिया। आधी रात से अचानक शुरू होने वाली बदबू क्या जहरीली गैस थी, केमिकल या कोई और, इसकी सरकारी तौर पर वजाहत नहीं हो पाई। बदबू की वजह से मुकामी अफराद सख्त परेशान हुए। बास खानदान अपने मकानात को मुखफल करते हुए दूसरे मकामात पर मुंतकिल हो गए। कुछ खवातीन और बच्चे बीमार पड़ गए। बताया गया है कि टप्पा चबूतरा के अलावा 5 दीगर कॉलोनियों में भी यही सूरत हाल थी, जिससे मुकामी लोगों में शदीद तशवीश पाई जाती है। टप्पा चबूतरा, यूसुफ नगर, कारवां, नटराज नगर और महेश कॉलोनी के मकीन खौफ की वजह से रात भर चौकस रहे। मजलिस के कारपोरेटर जाकिर बाखरी ने इस अजीबो गरीब बू से फौरी पुलिस और बल्दिया के ओहदेदारों को इत्तला दी, जिसके बाद DRF की टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल का जायजा पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक होने के मामले में राजेश्वर नायक की बीवी शांति और TSPSC सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रेड्डी की बीवी सुचित्रा को हुक्काम ने चंचलगुड़ा जेल SIT से अपनी तहवील में ले लिया और उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। వెళ్ళిపోయింది. వెనక కూర్చుంటారన్న.
सिकंदराबाद गांधी हॉस्पिटल के रूबरू कंट्रैक्ट की असास पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन मुलाजिमीन को कोविड के दौरान कंट्रैक्ट की असास पर ज्वाइन किया गया था और अब उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। उन मुलाजिमीन ने मुतालबा किया है कि उन्हें काम पर वापस लिया जाए। నవ్వకూరి వాళ్ళని మాట్లాడుతున్నారు అరే వీడియోలు అంటే మళ్ళా కనీసం ఎప్పుడప్పుడు మాట్లాడలేదు మళ్ళా వాళ్ళు అనుకోరు. మాట్లాడరు భయ్. అరే మాట్లాడరు ఎవరన్నా ఒకరు మాట్లాడడానికి ఏం మాట్లాడినా మాకు జరిగిన అన్యాయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి కానీ ఇన్ని రోజుల నుంచి మేము ఎంతమంది అయ్యారో ఎంత కొట్లాడినా ఎంతమందికి ఎన్ని లెటర్లు ఇచ్చినా ఏమైనా కూడా మాకు ఇప్పటివరకు స్పందించని ప్రభుత్వం చూడండి. ఎట్లుందంటే ఇప్పుడు ఈరోజు మేము ఇంకా ఎర్రటిండాలా 40 degrees ఎండలా ఈరోజు మేము ఇక ఇంత కూర్చున్నా కూడా మాకు ఇంత తిండి పెట్టిన పరిస్థితి ఉన్నా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని మేము ఇంత ధర్నా ఇట్లా చేస్తున్నా కూడా ఎవరు కానీ స్పందించిన పరిస్థితి. కనీసం ఒక టెంట్ కూడా వేసుకోకుండా టెంట్ కూడా వేసుకొని కూడా పర్మిషన్ లేదు. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో అసలు ఏం జరుగుతుంది? మేము గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల గురించి కొట్లాడతలేము, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల గురించి కొట్లాడతలేము. ఉన్న కొన్ని తిరిగి మమ్మల్ని రిజల్ట్ తీసుకుని చెప్పి కొట్లాడుతున్నందుకు ఇదా మీరు ఇచ్చేది? ఈ గవర్నమెంట్ దాకా పోయిందో లేదో మాకు తెలియదు, కానీ ఎవరు స్పందించకపోవడం అనేది మాకు చాలా బాధాకరమైన విషయము. ఇంకా ముసలాళ్ళు ఉన్నారు, వృద్ధులు ఉన్నారు, పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, చిన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. అందరికీ ఎవరికి ఏ అన్యాయం, ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏ ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా కూడా దీనికి ప్రభుత్వానిదే బాధ్యత. ఇందుకు దయచేసి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం దృష్టి దాకా వెళ్ళి మాకు ఏదో న్యాయం జరిగేటట్టు చూడాలని చెప్పేసి కోరుకుంటాం. మీకు రైట్ అమ్మా 2 నిమిషాలు మాట్లాడి ఆలోచన 2 నిమిషాలు మాట్లాడు బాబు 2 నిమిషాలు. आनजहानी नंदमोरी तारका रामाराव की 7 साला तकारीब के मौके पर जिले मेरचल के बहादुरपल्ली चौराहे पर दुंडीगढ़ म्यूनिसिपल एरिया में नंदमोरी तारका रामाराव के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से कानून साज असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। खुतबुल्लापुर रुकने असम्बली KP विवेकानंद और दिगर भी मौजूद थे। సూర్య ప్రతాపం బాలుడి యొక్క పగలతో అందరూ గట్టిగా ఆ యొక్క భవించినటువంటి ఆ యొక్క రూపాన్ని చూడగానే నిజంగా ఆవిష్కరింపజేసినటువంటి మహనీయులు శ్రీ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి మరొక్క మారు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అండి.
నాయకులు ఈ విధంగా ఉండాలి, సేవ చేసేవారు ఈ విధంగా ఉండాలి. బాబు దయచేసి ఎలక్ట్రీషియన్స్, ఇది సత్యం కూడా. వారి పేరు చెప్తూ ఉంటేనే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి కణాలన్నీ కూడా ఉరకలెత్తి 160 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో మరి ఏ ఏరోప్లేన్ వెళ్ళినటువంటి స్పీడ్లలో మన యొక్క కణాలన్నీ కూడా ఉప్పొంగిపోతాంలో కూడా ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఏ విధంగా हैदराबाद में एक शख्स ने कर्ज देने वाली खातून का ही बेदर्दी से सर कलम कर दिया और जिस्म के आज़ा घर के फ्रिज में छुपा दिए। ये अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के चैतन्यपुरी में पेश आया। मुलजिम को पुलिस ने चहरशंबे को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 8 दिन कबल हैदराबाद के चादरघाट मूसा नदी में एक खातून का सर प्लास्टिक के कवर में दस्तयाब हुआ था। उस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई थी। कटे हुए सर को पुलिस ने महफूज करते हुए मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी थी। सर के जरिए मुतवफ़्फ़ी खातून के ठिकाने का पता लगाने के लिए 8 टीमें तश्कील दे दी गई थी। पुलिस ने खातून के सर के साथ पोस्टर छापे। पुलिस ने मलकपेट, सईदाबाद, चादरघाट और पुराने शहर में पोस्टर जारी करते हुए पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद खातून की शिनाख्त अनुराधा के तौर पर हुई, जो कि बतौर नर्स काम करती थी। मुतवफ़्फ़ी की बहन और बहनभाई ने उसकी शिनाख्त अनुराधा के नाम से की है। उसकी बहन ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी सूद पर रकम दिया करती थी और उसे पैसों के लिए कत्ल किया गया होगा। मुतवफ़्फ़ी की बहन और बहनभाई के इत्तला पर मुलजिम चंद्रमौली की शिनाख्त करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि उसने नाश को टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में छुपा दिया है। चैतन्यपुरी में मुलजिम के घर पुलिस पहुंच गई, जहां वो फ्रिज में खातून के पैरों को देखने के बाद चौंक गई। मुलजिम ने अनुराधा के जिस्म के आज़ा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पैर फ्रिज में छुपा दिए थे। उसने जिस्म के बाकी हिस्सों को बकेट में छुपा दिया। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी के आज़ा को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रियासत तेलंगाना के जिले करीमनगर में दूल्हे पर हमला करने के बाद एक नई नवेली दुल्हन का फिल्मी अंदाज में अगवा कर लिया गया। अगवा करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार ही थे। करीमनगर के हुजूराबाद टाउन में पेश आए दुल्हन के अगवा के वाक़े ने सनसनी मचा दी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब नौबिहता जोड़ा जगतिया जिले के कोंडागट्टू में शादी के बाद हनमकुंडा जा रहा था। गाड़ी हुजूराबाद अंबेडकर के मुजस्समे के पास रुकी। दुल्हन को उसके रिश्तेदार कार रोककर जबरदस्ती ले गए और हमला आवरों ने दूल्हे पर भी हमला कर दिया। तमाम 15 अफराद ने एक साथ कार पर हमला किया और लड़की को अगवा कर लिया। उस वाक़े से मुताल्लिक़ मनाजिर वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए। चल कार लागे ड्राइवर ने गुंजे फर्स्ट ड्राइवर ने गुंजे गया ड्राइविंग नंबर ना डोर एक मुन्ने जाम डोर लागे थे 95 उर्दू खबरनामे में अब वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। ಕೆಂಪು ರುಬಿ, ಮುತ್ಯಂ ಪೆರ್, ಪಗಡಂ ಕೋರಲ್, ಪಚ್ಚ ಯಮರಾಲ್, ಕನಕಪುಷ್ಯ ರಾಗಂ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಫೈರ್, వజ్రం డైమండ్, నీలం బ్లూ సఫైర్, గోమేధికం హెసోనైట్, వైఢూర్యం క్యాట్సైట్. రత్నాల్లో మహత్యం ఏమిటి? రత్నం పెడితే తలరాత మారుద్దా? రత్నం మారితే రంగు పడుద్దా? రత్నం మహత్యం త్వరలో మీ 95 న్యూస్ ఛానల్లో. మీ జాతకం బాగాలేదని ఇబ్బంది పడుతున్నారా? మీరు అనుకున్న పనులు జరగడం లేదా? నిత్యం సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీకు జాతక రత్నాలపై నమ్మకం ఉంటే
మీ జాతకం ప్రకారం జ్యోతిష్యుడు చెప్పిన సర్టిఫైడ్ నవరత్నాల కోసం వెంటనే సంప్రదించవలసిన అడ్రస్ ఎస్కే జ్యువెలర్స్, రామ్నగర్, హైదరాబాద్. నెంబర్ 9640261234. మీ పెళ్లి రోజు, పుట్టినరోజులు, మరే ఇతర శుభ కార్యక్రమాలకైనా మీ బంధువులకు, శ్రేయోభిలాషులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? మీ ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలను టీవీలో చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఆలస్యం ఎందుకు? 95 న్యూస్ అందిస్తోంది మీకు ఆ అద్భుతమైన అవకాశం. ఆలస్యం ఎందుకు? స్క్రీన్ పై కనిపించే ఈ నంబర్కు వెంటనే డయల్ చేయండి. మీరు చెప్పే శుభాకాంక్షలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడండి. మీరు డయల్ చేయవలసిన నంబర్ 9912696750. वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। रियासत कर्नाटक के साबिक वजीर और 5 मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब होने वाले यूटी खादर को मुत्तफ़क़ा तौर पर कर्नाटक कानून साज असम्बली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। यूटी खादर को कर्नाटक असम्बली में पहले मुस्लिम स्पीकर बनने का भी एजाज़ हासिल हुआ है। इससे कबल इस ओहदे पर कोई भी मुस्लिम कायद मुंतखब नहीं हुआ। आज असम्बली में स्पीकर के ओहदे का इंतखाब हुआ। प्रोटेम स्पीकर और आरवी देश पांडे ने इलेक्शन से मुताल्लिक़ कार्रवाई चलाई। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने खादर के नाम की तजवीज़ की, जिसकी तायीद डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार ने भी की। इस तरह यूटी खादर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बाद अज़ां चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया और अपोजिशन लीडर व साबिक चीफ मिनिस्टर बोम्मई ने यूटी खादर को कुर्सी सदारत तक पहुंचाया। मुनव्वर राना की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें रियासत उत्तर प्रदेश लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। मालूम हुआ है कि वो ICU में ज़ेरे इलाज हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस बात की इत्तला उनकी दुख्तर सुमैया राना ने दी है। मुनव्वर राना की दुख्तर ने वीडियो पैगाम के जरिए वालिद की खराबी सेहत की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि उनके वालिद की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, लेकिन अब हालत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। उन्होंने अवाम से उनके वालिद की आजिलाना सेहतियाबी के लिए दुआओं की ख्वाहिश की है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने आइंदा 72 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया है और मुसलसल उनकी सेहत पर नज़र रखे हुए हैं। कई गाड़ी सवारों को हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाते और ट्रैफिक पुलिस के नजर आने पर उनसे बचने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करने के वाक़यात तो सुने या देखे होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक शख्स ने बाइक चलाने के दौरान अपने कुत्ते को भी हेलमेट पहना दिया। ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रियासत तमिलनाडु के शहर चेन्नई के शुमाल मगरबी इलाके का एक शख्स अपने पालतू कुत्ते के साथ मोटरसाइकिल पर निकला। क़वायद के मुताबिक एक उसूल है कि गाड़ी पर सफ़र करने वालों को हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, लेकिन जानवरों के लिए कोई उसूल नहीं है। लेकिन अपने पालतू कुत्ते से मोहब्बत की वजह से मोटरसाइकिल सवार ने उसे भी हेलमेट पहना दिया। इस वीडियो पर सारिफीन अलग अलग रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। एक सारिफ ने अपनी राय बताते हुए कहा कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं तो वो अपने साथी को बाइक पर सवारी के दौरान हेलमेट पहनाते हैं। முன்னாடி பார்த்து ஓட்டு ரோட போட பாத்துக்கலாம், இதுதான் பார்க்க முடியாது. அது நம்ம அதே இதை பார்க்க முடியாது போல இருக்கு, நம்மளாலே பார்க்க முடியாது. இன்னொருத்தவங்களும் நம்மளை பாதுகாப்பு நாய் மாதிரி இருக்கு பசங்க சொன்னாங்க. நம்ம லேட்டா தான் நானே பார்த்தேன். நீ தான் பார்த்த. बरतानवी फिजाई कंपनी के यूनिफॉर्म में हिजाब को भी शामिल किया गया है। गुज़िश्ता 20 साल में ये पहली बड़ी तब्दीली की गई है। इस तब्दीली में मर्द मुलाजिमीन के लिए 3 पीस सूट और ख़वातीन के लिए कई ऑप्शन शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फिजाई कंपनी की ख़वातीन मुलाजिम के यूनिफॉर्म में जदीद हमसूट, हिजाब, नीम आस्तीन वाली शर्ट और दीगर ऑप्शन शामिल हैं। ब्रिटिश एयरवेज का कहना है कि हिजाब सकाफती और मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए आराम और सहूलत के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्रिटिश एयरवेज के इंजीनियर्स और ग्राउंड अमला सबसे पहले नया यूनिफॉर्म पहनेगा, जिसके बाद तैयारे का अमला, कैबिन क्रू, पायलट और चेक इन एजेंट्स मरहलावार नया यूनिफॉर्म पहने।
95 उर्दू खबरनामे के अख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।